Hello students, welcome to my channel. This is second part in which we will discuss important questions from chapter number 6, life processes, and we will also learn to make the labeled diagrams. This is question number 1. Draw a diagram of the front view of human heart and label any 6 parts. Draw the diagram with pencil as shown in the figure and then start labeling the different parts. Number 1 is right auricle, number 2 is right ventricle, number 3 is left auricle, and number 4 is left ventricle. So these are the 4 chambers of heart. Okay, upper 2 are auricles, lower 2 are ventricles. Clear? Then labeling number 5 is dorsal aorta and labeling number 6 is pulmonary veins. After this, there are 3 more labelings there in the diagram: 7th, 8th and 9th. 7th is pulmonary artery, 8th is superior vena cava and 9th is inferior vena cava. So these 9 labelings you must learn in the heart. Clear? Question number 2. Where is the heart situated in our body? हार्ट कहाँ सिचुएटेड होता है बॉडी के अंदर? इट इज सिचुएटेड इन द थोरैकिक कैविटी अबव द डायफ्राम बिटवीन द 2 लंग्स. दोनों लंग्स के बीच में थोरैकिक कैविटी के अंदर हार्ट प्रेजेंट होता है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3. नेम द चैम्बर्स ऑफ ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स जो अभी आपने देखे हैं डायग्राम में. अपर 2 आर ऑरिकल्स, लोअर 2 आर वेंट्रिकल्स. राइट हैंड साइड पर देखिए राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल. लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. सो देयर आर 4 चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट. क्वेश्चन नंबर 4. नेम द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी. द लार्जेस्ट आर्टरी इज dorsal aorta. This is the labeling number 5 in the diagram. You can see it is the largest artery which supply blood to different parts of the body. Come to question number 5. What is the role of heart? हार्ट का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है जो वेन से ब्लड को रिसीव करता है और आर्टरीज में उसको पंप कर देता है. सो इट इज अ पंपिंग ऑर्गन दैट receives blood from the veins and pump it into the arteries. Question number 6. Name an artery which carry deoxygenated blood to lungs. कौन सी ऐसी आर्टरी है जो deoxygenated blood यानी impure blood यानी जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है उसको लंग्स तक लेकर जाती है? It is the pulmonary artery. Labeling number 7 देखिए. It is the pulmonary artery which is taking deoxygenated blood from the heart to the lungs. Question number 7 देखिए. Name the vein which carry oxygenated blood from lungs to heart. कौन सी ऐसी वेन है जो ऑक्सीजन वाले ब्लड को यानी प्योर ब्लड को यानी जिसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है उसको लंग्स से हार्ट तक लेकर आती है? इट इज़ द पल्मोनरी वेन्स. दिस इज द लेबलिंग नंबर 6 देखिए डायग्राम के अंदर. These are pulmonary veins which are bringing oxygenated blood from lungs to heart. Question number 8. Which veins bring deoxygenated blood from different parts of body to heart? कौन सी ऐसी veins हैं जो deoxygenated blood को different parts से heart तक लेके आती हैं? They are superior vena cava from upper part of the body and inferior vena cava from lower part of the body. These 2 veins bring blood into the heart. Clear? See the labeling number 8. It is the superior vena cava and labeling number 9 is inferior vena cava which are bringing deoxygenated blood to the heart. Question number 9. Differentiate between arteries and veins. यहाँ पर आपको आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बताना है. बिफोर राइटिंग द डिफरेंस सी दिस डायग्राम. यहाँ पर एक येलो कलर का ब्लॉक बनाया गया है. ये एक ऑर्गन है. नंबर 1 लेबलिंग है ये. इस ऑर्गन में एक आर्टरी एंटर कर रही है. लेबलिंग नंबर 2 जो रेड कलर से शो की गई है और एक वेन बाहर निकल रही है ऑर्गन से. लेबलिंग नंबर 4 दिस इज द वेन. क्लियर?
नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स. आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्लड को हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन तक लेकर आती हैं. सो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन. और इनकी वॉल्स कैसी हैं? दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. नाउ व्हाट आर वेन्स? वेन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो ब्लड को ऑर्गन्स से हार्ट तक लेकर जाती हैं. सो दे कैरी ब्लड टू द हार्ट फ्रॉम ऑर्गन्स. और इनकी वॉल्स कैसी होती हैं? दे हैव थिन वॉल्स एंड दे हैव वॉल्स प्रेजेंट इनसाइड इट. क्लियर. कम टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज ब्लड प्रेशर? ब्लड प्रेशर क्या है? जितना प्रेशर ब्लड आर्टरी की वॉल पर लगाता है दैट इज कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर and it is equal to 120 by 80. What is 120? It is the systolic pressure. What is systolic pressure? Systolic means जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है at that time जितना प्रेशर ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पर लगा रहा है that is called as systolic pressure and it is equal to 120 millimeter of mercury. What is diastolic pressure? जब हार्ट रिलैक्स स्टेट में है at that time जितना प्रेशर ब्लड आर्टरीज की वॉल्स पर लगाता है दैट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक प्रेशर एंड इट इज इक्वल टू 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. कम टू क्वेश्चन नंबर 11. नेम इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर को नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल में लाया जाता है? इट इज स्फिग्मोमैनोमीटर. कम टू क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट इज हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या है? हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है. इस रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ हार्ट को हार्ट बीट कहते हैं एंड इट इज इक्वल टू 72 बीट्स पर मिनट. क्वेश्चन नंबर 13 पार्ट ए. लेबल एनी 4 पार्ट्स इन द गिवन डायग्राम. इस डायग्राम में आपको कोई 4 पार्ट्स लेबल करने हैं. नंबर 1 पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स. ये पल्मोनरी आर्टरी है जो लंग्स की ओर जा रही है फ्रॉम द हार्ट. नंबर 2 लंग कैपिलरीज. पल्मोनरी आर्टरी जब लंग्स में एंटर करती है तो बहुत सारी ब्रांचेस में ब्रेक हो जाती है एंड दीज आर कॉल्ड एज लंग कैपिलरीज. नंबर 3 इज पल्मोनरी वेन. इट इज कैरिंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट. 4th इज आयोटा और डोर्सल आयोटा. ये ब्लड को कैरी कर रही है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नंबर 5 कैपिलरीज इन द बॉडी ऑर्गन्स एंड नंबर 6 वेना केवा फ्रॉम बॉडी. वेना केवा ब्लड को लेकर जा रही है हार्ट की ओर फ्रॉम द ऑर्गन्स. सो आउट ऑफ दीज 6 यू हैव टू राइट एनी 4. पार्ट बी ऑफ द क्वेश्चन. व्हाट आर द 2 फंक्शंस रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम? इस डायग्राम में कौन से 2 फंक्शन रिप्रेजेंट हो रहे हैं? नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है. नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड शो हो रहा है. सो यू हैव टू राइट दीज 2 फंक्शंस इन दिस आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड? ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? ब्लड इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स. एक उसका लिक्विड पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा और सेल्स होते हैं कॉल्ड ब्लड सेल्स जो 3 तरीके के ब्लड सेल्स हैं. रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है एंड बिकॉज ऑफ दिस हीमोग्लोबिन द कलर ऑफ द ब्लड इज रेड. और इसका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. यहाँ देखिए किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है इन डिफरेंट एनिमल्स. फर्स्ट सी इन फिशेस. फिशेस का हार्ट 2 चैम्बर का होता है और ब्लड हार्ट में से गिल्स में चला जाता है. गिल्स में ऑक्सीजन कलेक्ट करता है एंड देन ब्लड गोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ब्लड वापस हार्ट में आता है. सो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर. 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हार्ट 2 चैम्बर का होता है. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड हार्ट में सिर्फ एक बार आता है. क्लियर. कम टू एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स का हार्ट देखिए 3 चैम्बर का हार्ट होता है. अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स एंड लोअर चैम्बर इज कॉल्ड एज वेंट्रिकल. इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पर. दोनों टाइप का ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है इन द वेंट्रिकल और यही मिक्स ब्लड डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पहुंचता है. क्लियर. नाउ कम टू नेक्स्ट. क्रोकोडाइल्स
बर्ड्स एंड मैमल्स। यहाँ पर हार्ट देखिए कैसा है, 4 चैम्बर का हार्ट है। अपर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज ऑरिकल्स, लोअर 2 चैम्बर्स आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल्स। यहाँ पर कोई मिक्सिंग ब्लड का नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग है, क्लियर। और ब्लड हार्ट में 2 टाइम्स जाता है। पहले जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन नंबर 1 चैम्बर में, और फिर जब ये वापस लंग से आता है देन इट कम बैक टू चैम्बर नंबर 2 विच इज द लेफ्ट ऑरिकल। सो 2 टाइम्स ब्लड आ रहा है हार्ट में। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन। क्वेश्चन नंबर 15 पार्ट ए, डिफाइन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी से हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालना एक्सक्रीशन कहलाता है। सो एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। It is nephron. You can see the diagram of nephron given. Part C of the question, आपको excretory system का diagram बनाना है and parts label करने हैं as mentioned in the question. So, draw कीजिए diagram को with pencil as shown and start labeling. Number 1 labeling, part which form urine. कौन सा part है जो urine बनाता है? It is kidney. So, number 1 labeling is kidney. Number 2 is a long tube which collects urine from the kidney. Label कीजिए tube जो kidney से urine को collect करती है. They are ureters. So, labeling 2 in diagram is ureter. Label कीजिए ureter. Number 3, store urine until it is passed out. जो part urine को store करता है, it is urinary bladder. So, labeling number 3 is urinary bladder. So, 1 is kidney, 2 is ureter and 3 is urinary bladder. Question number 16. Write the roles of glomerulus, Bauman's capsule and tubules of nephron in formation of urine. सबसे पहले ये डायग्राम देखिए, ये नेफ्रॉन का डायग्राम है और इन तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखिए। नंबर 1 पार्ट इज बाउमन्स कैप्सूल जो कप शेप का है। नंबर 2 इज ग्लोमेरुलस जो बंच ऑफ कैपिलरीज हैं। नंबर 3 आर ट्यूब्यूल्स। नाउ लेट अस सी द रोल ऑफ दीज 3। ग्लोमेरुलस क्या करता है? ग्लोमेरुलस का काम है फिल्टर कर देना ब्लड को। सो इट इज अ बंच ऑफ कैपिलरीज विच फिल्टर द ब्लड। नाउ ये फिल्टर होकर ब्लड कहाँ जाता है? इट इज कलेक्टेड इनटू द बाउमन्स कैप्सूल। तो रोल क्या है बाउमन्स कैप्सूल का? द फिल्ट्रेट फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कलेक्टेड हेयर। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? ये जो फिल्ट्रेट है ये ट्यूब्यूल्स में से नीचे की तरफ पास होता है और जैसे जैसे ये ट्यूब्यूल्स में से पास होता है इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, सॉल्ट्स और बहुत सारा वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। So, what is the role of tubules? Glucose, amino acids, salts and major amount of water is reabsorbed as the urine flows down the tube. So, these are the roles of glomerulus, Bauman's capsule and tubules of nephron in formation of urine. Question number 17. Define dialysis. What is dialysis? Removal of nitrogenous waste from body by passing the blood into artificial kidney is called as dialysis. देखिए क्या होता है, जब किसी पर्सन की किडनी फंक्शन करना बंद कर देती है तब पेशेंट की बॉडी से ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी में भेज दिया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी का डायग्राम आपके सामने है। ब्लड में से वेस्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंड the clean blood is sent back to the person's body. This is called as dialysis. So that's all for today. Thank you very much for staying with me. Subscribe the channel to get the information about my new video. Thank you so much.